সাতাশিতে এই যে কালচারাল সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম তাদের যে শারীরিক মানসিক উদ্বুদ্ধ করে তোলার যে একটা দিন, সেটাকে তারা প্রত্যেক বছরেই তার জন্য তারা যে পার্টিসিপেট করবে, তারা যেন নাই নাই করে হয়তো 15 দিন 20 দিন 1 মাস ধরে তারা কিন্তু সেটাকে বেস করে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামের করার জন্য তারা অধীর আগ্রহী থাকেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের শারীরিক মানবিক মানসিক যে বিকাশ, তারা যে স্টেজে মঞ্চে এসে দুটো কথা বলতে পারছে, তারা যে আগামী দিনে আরও উন্নত ভালো জায়গায় যাবে তার যে একটা পরিকল্পনা স্কুল কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন, আমি খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত। তাদেরকে আমি স্যালুট সম্মান জানাই। সত্যি বলতে দ্বিধা নেই, বিগত কয়েক বছর আগে এই স্কুলটার শুরু হয় হয়তো 50-100টা ছাত্রছাত্রী কয়েকজন টিচার নিয়ে, কিন্তু আজকে এই চাচল সাব ডিভিশনে জেপটি স্কুল একটা অভূতপূর্ব উল্লেখযোগ্য স্থান কিন্তু অধিকার করেছে মালদা জেলায়। সব থেকে ভালো যেটা জিনিস যে আমরা যেই ধর্মে বিলংস করি এবং যেই সংবিধান যে আল কোরআনের উপর ভিত্তি করে আজকে সারা বিশ্বের মাটিতে একটা ধর্ম, একটা ইসলাম যে কায়েম হয়েছে, তো সেই জায়গায় আমি শুনছিলাম এখানে আমি খুবই ভালো লেগেছে যে আমরা ছোটোবেলায় হয়তো সেই শিক্ষাটা পাইনি। যেই নতুন প্রজন্ম আজকে যেভাবে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব প্রিন্সিপাল থেকে নিয়ে শুরু করে আলেমে কেরামগণ এখানে উপস্থিত আছেন, যেই শিক্ষা দিয়ে একজন সুশিক্ষিত একজন নাগরিক দেশ এবং জাতির এবং সমাজের একটা গঠনমূলক জায়গা দাঁড় করাতে পারবেন, সেই শিক্ষাটাই কিন্তু এই জেপটি স্কুলের মধ্য দিয়ে আমি আমার জ্ঞানে তো আমি যেটা মনে করছি যে এই ছোটো ছোটো বাচ্চাদের মধ্য দিয়ে আজকে যে সূচনাটা ইসলামিক যে কালচারটা রাব্বির হামহুম আকামা রাব্বায়ানি সাগিরা, অর্থাৎ আমার জন্মের সময় যেভাবে আমার মা বাবা আমাকে লালন পালন করেছিল, মৃত্যুর পরেও যেন সেভাবে আমার মা বাবা যেন সেই স্থানে থাকে, সেই অধিকারটা, সেই সূচনা, সেই দায়বদ্ধতা আজকে এই ছোটো ছোটো বাচ্চার মনের মধ্যে যদি নিয়ে আসে, একজন বাবা মা কীভাবে একজন বাচ্চা কাচ্চাকে মানুষ করে সুসন্তানকে একটা তৈরি করে একটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে, এই জায়গাটা যদি একটা বাচ্চার মধ্যে দিয়ে ছোটোবেলা থেকেই যদি এই প্রতিষ্ঠান এই শিক্ষা কেন্দ্র যদি নিয়ে আসে, দেখবেন আগামীতে এই জেনারেশন সমাজ দেশ জাতিকে এরা কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি মনে করি আমাদের এই জেপটি স্কুল, যেহেতু আমি ওই পাড়ায় থাকি এবং আনসার সাহেব শিক্ষিত মানুষ, নিজেও একজন স্কুল টিচার, পাশাপাশি আমাদের প্রিন্সিপাল খুব ভালো মানুষ, আজকে 700 জন ছাত্রছাত্রী এবং 50 থেকে 60 জন টিচিং নন চিটিং স্টাফ এবং সুন্দর একটা পরিকাঠার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম ওনারা করে থাকেন। আজকের প্রোগ্রাম খুবই সুন্দর এবং নিঃসন্দেহে গোটা দিনে ভালোভাবেই চলবে। আমি আর বক্তব্য না বাড়িয়ে আজকের এই প্রোগ্রামের সুফলতা কামনা করে আগামী দিনে এই জেপটি স্কুল আরও সুন্দরভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম করবেন এবং দেশ এবং সমাজ, এই জাতি এবং যারা এখানে টিচার আছেন, নন টিচিং আছেন এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ যিনি আছেন, তাদেরকে আমি সম্মান জানাই যে এরকম একটা পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান আপনারা চালাচ্ছেন। কারণ মানুষ অর্থ থাকলে বিভিন্ন রকম কাজ করার সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন, ব্যবসা বাণিজ্য থেকে নিয়ে বিভিন্ন রকম, কিন্তু একজন শুভ বুদ্ধি সম্পূর্ণ মানুষ যার মনের মধ্যে এই দাগটা কেটেছিলেন যে এরকম একটা সমাজ গড়ার জন্য, একটা দেশ জাতি গড়ার জন্য, এরকম মানুষ তৈরি করার জন্য যিনি কারিগর হিসাবে নিযুক্ত হয়ে আজকে এতজন টিচিং নন টিচিং থেকে নিয়ে শুরু করে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ এভাবে একটা সমাজ গড়ার জন্য ছোট ছোট বাচ্চাদের তৈরি করার যে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন, নিঃসন্দেহে এটা সাদগাই জারিয়ার মধ্যে পড়বে যে একজন বাচ্চা কাচ্চাকে তৈরি করে দেওয়া, তার মধ্য দিয়ে দেশ জাতি সমাজে বিভিন্ন স্তরে কাজ করার মধ্য দিয়ে যে একটা তৈরি করে দেওয়া, সেটা নিশ্চয়ই একটা ভালো কাজ এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ভগবান আমরা যেই নামেই ডাকি না কেন নিশ্চয়ই ভালো করবেন। আমি আজকের প্রোগ্রামের সফলতা কামনা করে শেষ করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর ইউর ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস। স্যার সবসময় আমাদের পাশে থাকেন। স্যার আমাদের স্কুলের পাশে ওনার বাড়ি, কোনো প্রবলেমস কোনো পরেশানি হলে স্যারের কাছে গেলে বা যোগাযোগ করলে স্যার কিন্তু ফুল টাইম সাপোর্ট করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার অন বিহাফ অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Now an English rhyme will be performed by Tamanna, Rafia Pradhan, Shadab, Samira. And for the English speech, Meethi Parvin, Saima Parvin and Ayush. Rosina ma'am and Meena ma'am, please bring them up on the stage. Saima, Meethi, Hanis, Mehboob. Meethi, Saimi, Myra, Sama, Ariba, Jisan,
जेनिफा MD आहान, जेनिफा आलम, अली शान, तस्नीम रहमान, रिफा खातून, गोलाम किबरिया, लीजा परवीन, MD रेजा रईस, सारा सानवाज, आफरीन नूर। प्लीज বাচ্চাদেরকে কাছে পাঠিয়ে দেবেন স্টেজের। Now I'd like to introduce someone who is newly elected as a vice principal in our school. I will call Sweeta ma'am. Sweeta ma'am, please come up on the stage. Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to introduce someone who is already a very dear one to us. A leader brings not just authority but vision, guidance and inspiration. And inshallah, with our help, with our vision, her ability, we are going to shine in future. Jeff is going to definitely see a new beginning coming through with the help of our new Vice Principal Madam, Miss Nafisa Wahab. Presenting her on stage, let's welcome her with open arms and a big round of applause from the students as well as the guardians and the teachers. I request everyone to welcome her with a big round of applause. Welcome you as a Jeffton ma'am. Thank you everyone. Assalamu alaikum. Respected principal, teachers, our guests and my dear students. Warm greetings to everyone. I am Nafisa Wahab, the new Vice Principal of JEP English Medium School. It's my privilege to be a part of a school that believes in learning, discipline and strong values. Since I am newly elected, most of you don't know about me, so I'll give a brief introduction about myself. I was born here, but I was brought up in Mizoram. I completed my high school and higher secondary education in Mizoram. I then pursued my bachelor degree in mathematics from Pachunga University College. I completed my master degree in mathematics and completed my BF degree from Mizoram University. I believe education is not only about academics, but also about shaping confident and being responsible individuals. As Vice Principal, my aim is to support our teachers, guide our students, and work closely with our parents. Our focus is to strengthen academic, promote values and discipline, and provide opportunities for students to develop their talents. With teamwork, dedication, and the support of all, I am confident that our school will continue to grow and achieve greater success. Thank you all and have a wonderful day. देखिए, मैं सारे पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ 2019 to 2025 जनवरी हम लोग की जो वाइस प्रिंसिपल मैम थी सुल्ताना मैम, उनका मैरिज सेरेमनी की वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। पर्सनल रीजंस थे, शादी उनकी हो चुकी है, यही एक रीज़न था उनका स्कूल छोड़ने का। तो सुल्ताना मैडम जहाँ से पढ़ के आई है, जिस स्कूल से पढ़ के आई है, मैडम ने भी तालीम उसी स्कूल से लिया है। सेम लाइक हर, हम लोग उम्मीद करते हैं जिस तरह का आप लोगों ने सपोर्ट हम लोगों को किया है मैडम को या हमें, इनके साथ भी सेम रवैया रहेगा। वी वेलकम यू मैम ऑन आवर स्कूल ऑन बिहाफ ऑफ जेप मैनेजमेंट। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि उनको बहुत सारा ऑफर, बहुत सारा ऑप्शंस मिला था
फिर भी उन्होंने हम लोगों को चूज़ किया, उनको लगा कि शायद हम लोग उनके लायक हैं। We are very thankful to you, ma'am. Thank you so much. Once again, I will request everyone to please clap for her, everyone, for our new Vice Principal, ma'am, Miss Nafisa Wahab. Thank you, ma'am. प्यार का कोई गीत सुना दो, मेरी हार को आज जीत बना दो। प्यार का कोई गीत सुना दो, मेरी हार को आज जीत बना दो। फूल बनकर अपने हंसी से जीवन को संगीत बना दो। Now moving to our next event, number 18. Now our little brothers to show their performance of Bengali rhymes. Now I would like to call Saima Mithi and Hanish Mehboob. Rojina ma'am and Meena ma'am, bring your all students upon the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. খোকা যাবে শ্বশুর বাড়ি যাবে কে, ঘরে আছে হলু পিলা কবর বেড়েছে, চাঁদ উঠে ফুটতেছে কদম তলায় কে, হাতে নাচছে ঘোড়া নাচে সোনামণির বিয়ে। থ্যাংক ইউ। Please clap your hands for our little star. Give a big round of applause for them. Now moving to our next event, number 19. The LKG student will present a performance of Hindi rhymes filled with joy and energy. Please encourage our young performer with your smile and applause for them. Now I want to call Mithi, Saima and Myra Samajishan. Rojina ma'am and Meena ma'am, please bring your all students upon the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरी बिल्ली काली पीली पानी से ऊपर गई, नीली होकर लगी कांपने, अच्छी अच्छी लगी चीखने। मैं फिर बोला कुछ तो सीख, वीर रुमाल के कभी न सीख। पाँच छोटी चिड़िया खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई रे। चार छोटी चिड़िया खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई रे। तीन छोटी चिड़िया खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई रे। दो छोटी चिड़िया खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई रे। एक छोटी चिड़िया खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई रे। Thank you. What a wonderful performance. Give a big round of applause for them. गुरु तेरा उपकार कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु तेरा उपकार कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल। Get ready for some fun and excitement. Our LKG students are coming with lovely action song named कभी भी किसी को सताना नहीं. So Rojina ma'am and Meena ma'am, bring your all students upon the stage. Once again I would like to thanks to our professor sir, सागिर सर हम लोग के बीच बैठे हैं. थैंक यू सो मच सर. सर थोड़ा शॉर्टेज टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है बोल के आप लोग को नहीं बुला पा रहे ऊपर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर. DIB स्कूल TIC सर मिस्टर अनीसुर रहमान सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. ऑल द पेरेंट्स दोज हु आर सिटिंग हियर, तहे दिल से आप लोगों का हम लोग शुक्रगुजार करते हैं. हम लोग का प्रोग्राम थोड़ा लंबा है बोल के हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा करवा रहे हैं. सॉरी सर आप लोग को थोड़ा ऊपर नहीं बुला पाए, बट थैंक यू फॉर कमिंग हियर सर. थैंक यू सो मच. सोहा, जेनिफा खातून, MD आहान, जेनिफा आलम, अली शान, तस्नीम रहमान, रिफा खातून, गुलाम किबरिया, लीजा परवीन, MD रेजा रईस, सारा शानवाज, आफरीन नूर, ये सारे बच्चे LKG UKG के हैं. मैं जो नाम बुला रहा हूँ उनको प्लीज स्टेज के पास में भेजिए.
रेशमा, come near the stage. शोहा, जेनिफा खातून, MD अहान, जेनिफा आलम, अलीशान, तस्नीम रहमान, रिफा खातून, गुलाम किबरिया, लीजा परवीन, MD रेजा, रईस, सारा शाहनवाज, आफरीन नूर, MD राशिद अली, गुलाम किबरिया, काजी इहान नवाज, माइशारा, मारिया खातून, सरमिन परवीन, लियाना अली, जेनिफर आलम, जयान इस्लाम. द नेम आई हैव कॉल्ड, प्लीज सेंड देम नियर द स्टेज. मैंने जो नाम पुकारा उसको थोड़ा प्लीज भेज दीजिए. प्लीज मैम. रेडी रेडी सर, जल्दी कराइए थोड़ा. वंस अगेन आई एम कॉलिंग आउट द नेम. सोहा, जेनिफा खातून, MD आहान, जेनिफा आलम, अली शान, तस्नीम रहमान, रिफा खातून, गुलाम किबरिया, लीजा परवीन, MD रेजा, रईस, सारा शाहनवाज, आफरीन नूर, MD राशिद अली, गुलाम किबरिया, काजी इहान नवाज, माइसारा, मारिया खातून, सरमिन परवीन, लियाना अली, जेनिफर आलम, जयान इस्लाम. ठीक है भेजिए भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा. प्लीज सेंड देम मैम. और कोई है? जल्दी से. हाँ सरफराज सर, सी द गेस्ट चेयर्स आर देयर सर, प्लीज से समवन टू ब्रिंग इट हियर. नो, say some students, they will bring it here. Madam, ready? Sir, play the music, sir. Same to increase the volume. All of you clap your hands, please, everyone. बच्चे के लिए please, बच्चे के लिए कम से कम करिए.
will now delivered by Soha sister of class 6. Listen carefully and encourage her with your warm applause for them. Now Soha sister of class 6, come upon the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Respected principal, teachers and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Islam means perfection. It also means dedicate everything to other person without expecting anything back into turn. It is on one way street. There is nothing that can back turn. Because my parents have given me far more than I even pay back. So now it's my time to at least do my duty as a loyal daughter or son. By the one of both of them, in which old age, while with you, say not to them so much as oof and do not repel them, but talk to them in terms of honors. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the largest door to Jannah and the middle door to Jannah that any person have are that of his parents. Parents are the easiest way to enter Jannah. If we treat our parents with a love and respect, they reserve the easiest way to enter Jannah. One day, a famous companion, Al-Hali al-Khalifa Joy, he was uncontrollably crying. The Sahaba around him and counseled him, Inshallah, that he is in Jannah, and Inshallah, Allah has forgiven him. He said to them, do you think I am crying because my father has died? No, this is not the reason why I am crying. I am crying because my main door to Jannah has been taken away from me, that I have to get Jannah. Another hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, one day a man came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said, O Messenger of Allah, I have come from far away land and emigrated to Medina in order to be with you and do Hajj behind you. And I even left my parents crying. Thank you. Please clap your hands for Soha sister. Honorable guests, now we move toward UKG student in meaningful Diniyat activity by our UKG student. The performance reflects moral and Islamic values. I want to call Jennifer Khatun for singing her beautiful naat. Now moving to the Diniyat activity, I want to call MD Ahan, Jennifer Alam, Ali Shahan, Taslim Rahman, Rifa Khatun and Golam Kibriya. Now moving to Mukalma, said by MD Raish, Sara Sanawaj, Afrin Noor. Please come upon the stage. Sir, bring them first, please. Sakil, sir. MD Rashid Ali, Gulam Kibriya, Kazi Ihan, Maishara, Maria Khatun, Sarmin Parvin, Liana Ali, Jennifers. Come near the stage. Zayan Islam, come near the stage. Samsun ma'am, please come. Good morning to everyone. I read class UKG.
Please clap your hands for our little star. Now moving to our next event number 23. Our UKG students are ready to present English rhymes. Enjoy their confidence, pronunciation and lovely performance. Please welcome our student MD Rashid, Golam Kibriya, Kazi Ahan Nawaz, Mai Shara, Myra Khatun, Sarmin Parveen, Liana Ali, Jennifer Alam. Please Samsung madam bring your all students up on the stage. Assalamualaikum. Good morning to everyone. I read in class UKG. The school name object English medium. Come with me, Kambaltullah. I will teach you Bismillah. No one is great but Allah. I will teach you Bismillah. When you start eating food, say Bismillah, it is good. After eating, thanks Allah. I will teach you Bismillah. Always remember, tell you lie. You should never tell a lie. You will succeed, inshallah. I will teach you Bismillah. Thank you. Thank you. Please clap your hands. I can hear the birds sing. I can hear the phone ring. I can see the grass grow. I can see the white snow. I can smell the roast meat. I can smell the dirty feet. I can serve the soft green grass. I can touch the smooth glass. I can touch the crispy apple. I can taste fresh pineapple. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rahan. My name is Resma Khatun. Of teacher. Auzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thank you. सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता है. सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता है, मगर जो हिम्मत रखे वही पहचान होता है. Moving to our next event, an English speech will be delivered by Jahan Islam from UKG. Please motivate him with your warm applause. What? Assalamualaikum. My name is Zain Islam. I read in class UKG. The school name object English medium. I want to say something while speech. Respected teachers and my dear school fellows. Assalamualaikum. Today the topic of my speech is Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The life of the Holy Prophet is a role model for every person of this world who believes in Allah and the Day of Judgment. The source of light and guidance can lead
Now it was laid with the prophethood of the prophet. Hazrat Muhammad was born and died in the month of Rabiul Awwal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought a revolution in the lives of the people. The Quran and Sunnah are the basis of our religion. The holy epistles of the prophet guide us in our individual and collective life. Thank you. What a wonderful speech given by our little brothers. Please give a big round of applause for them. Now, it's time for action song represented by our UKG student named He is a Moon. Let's their action and inspiration. Samsum madam, please bring your all student up on the stage. See the next participants, Hindi drama. Sulena madam, please make your team ready. Tahir sir, please be ready. UKG students MD Liban, Mahid, Nisaj Karim Ajad, Ayman Sarkar, Ahan Rais, Ahir Khan, Atik Jamal. Ahan Rais, Ayman Sarkar, Atik Jamal, Ayat Farhana. The name I am calling, please come near the stage. MD Liban, Mahid, Nisaj Karim Ajad, Ayman Sarkar, Ahan Rais, Ahir Khan, Atik Jamal, Ahan Rais, Ayman Sarkar, Ayat Farhana. Mizaf, come near the stage. The name I am calling, please come near the stage. Is a moon and beautiful, 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 like the moon, beautiful. He's a moon, he's a moon, he's a moon, our prophet. He's a moon and beautiful. उसमें किस तरह घुन पकड़ लेता है, क्योंकि हम तो मुसलमान तो हैं पर हमारे अंदर घुन लग गया है।
क्या हम इसके ऊपर थोड़ी बात करें? जिस तरह इस्लाही मुआशरा, इस मुआशरे के अंदर जो जो खराबियां हैं उसको हम उठा के लाते हैं, जो हम इसको देखते हैं। एक एक यहाँ पर आप देखेंगे स्टेज पर एक एक बच्चे बच्चियाँ किस तरह परफॉर्मेंस करेंगे। इस चीज़ के बारे में हमारे माशरे के अंदर क्या क्या खराबी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी के नाम से हम ये प्रोग्राम का नाम इस्लाही मुआशरा नाम देते हैं। दे हमारे माशरे के अंदर अच्छाइयाँ हो, बुराइयों से हम सब दूर रहें। आज हम और आप मुसलमान तो हैं, लेकिन मुसलमान का हम अपने दिल के अंदर ईमान का जज्बा पैदा नहीं करते हैं। हम तो नबी के उम्मती हैं, लेकिन साहबा इकराम का वो जज्बा पैदा नहीं करते हैं। हमारे नबी ने एक मर्तबा बोला था शराब छोड़ दो, साहबी ने उसके दूर इतना गया तो कभी हाथ तक न लगाया। ये है उम्मती का एक पैगाम। हमारे नबी ने जिस तरह साहबा इकराम को बताया, हम उन्हीं के उम्मती हैं, लेकिन हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी खराबियां घुस गई है, उसे हमें दूर करना चाहिए। इसीलिए इसका नाम इस्लाहे मुआशरा दिया जाता है। हमें समाज के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता करके बुराइयां ख़त्म करना है और अच्छाइयों को अपनाना है। इसी बात पे अपना बयान ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अब स्कूल के दिलो जान, स्कूल के रौनक, स्कूल के धड़कन हमारे प्रिंसिपल सर मैं दावत देता हूँ वो आए स्टेज पर सामने और हमारे जज्बात को, हमारे स्कूल के बारे में यूँ बयान करें जिस तरह आसमां में जब बादल छाई हो, जब काली बादल छाई हो, अगर वो आफत वहाँ से टल जाए तो हम सब क्या सोचते हैं अभी बारिश नहीं आएगी। इसी तरह एक शायर याद आया है, गुल है गुलशन है फसले बहार है, गुल है गुलशन है फसले बहार है, सब मेहमानान इकराम आ चुके हैं, बस आप ही का इंतज़ार है। प्रिंसिपल सर डाइस पर। Assalamu alaikum to respected Vice Principal Ma'am, Masoom Sir, guests, teachers, students and the beautiful parents. Today we have gathered here to celebrate our 5th Islami Muashara. Like every year we used to give our best. This time also we have tried our best. Because today is the day where the students will come forward, where the teachers will come forward. They will show their talents in front of you. They will show their hard work in front of you. Today is the platform from where I have seen many of the students. They have got the opportunities and they have signed up in a very good way. देखिए मेरा थोड़ा आवाज़ ख़राब है, थोड़ा आवाज़ ख़राब हो चुका है। वाइस प्रिंसिपल मैम नहीं है, वो समझ में सबको आ ही रहा होगा। अभी नई मैडम आई है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। मैं एकदम डायरेक्टली हिंदी में आ रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, टाइम बहुत कम है। देखिए सबको पता है कुछ पेरेंट्स यहाँ पे नए हैं, कुछ पुराने पेरेंट्स हैं। हम लोग का सफ़र आप लोगों को अच्छा से ही पता है। 19 से लेके अभी तक इतने दिनों में हम लोगों ने 5 साल का सफ़र तय किया। अभी तक 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे स्कूल पे अभी रनिंग 700 बच्चे पढ़ रहे हैं। रनिंग इस साल तकरीबन 200 बच्चे एडमिशन ले लिए हैं इस साल। जो लोग पहले दिन से हम लोगों को जानते हैं, शायद उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा इतने बच्चे कहाँ से आए। लेकिन देखिए ये हार्ड वर्क है, ये मेहनत है, ये आप लोगों का प्यार है, ये सपोर्ट है जो आप लोगों ने ही किया है। क्योंकि मैं हर साल ये चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ, हम लोग का स्कूल का आप कोई भी कॉर्नर पे कहीं पे भी कभी कोई बैनर आप लोग को नहीं दिखेगा, कभी कोई माइकिंग जो होता है हुड लगा के माइकिंग करते हैं। आज तक बस पहले साल जब हम लोगों ने स्कूल खोला था उसी साल हम लोगों ने ऐड के लिए माइकिंग किया था। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो नौबत नहीं आया है जो कहीं पे बैनर लगाना पड़ता है न किसी को ऐड के लिए बोलना पड़ता है। सबसे बड़े ऐड आप लोग बैठे हुए हैं हम लोग के सामने, जो आप लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि आइए स्कूल में बच्चे को पढ़ाइए।
इसीलिए हम लोग ये लंबा सफ़र तय कर पाए हैं और इस जगह पे आके खड़े हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, बहुतों को ऐसा ख्याल है इस्लामिक स्कूल में पढ़ा के क्या फ़ायदा है, बच्चे को देखे क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा जिस्ट बताता हूँ। हमारे स्कूल से जो बच्चे पढ़ के अभी बाहर पे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे स्कूल से बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। उनकी मदर हमारे स्कूल की टीचर है, दिलवारा मैडम, जो सीहीपुर से ही बिलोंग करती है। उनके बेटे हमारे स्कूल में पढ़ते थे, अभी वो अलीगढ़ में पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा ये एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अच्छे रैंक का वो स्टूडेंट है, रैंक होल्डर है। उसके बाद और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जामिया में पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आलमीन मिशन, वेस्ट बंगाल का बहुत ही रिनाउंड एक मिशन है, वहाँ पे जाने के बाद भी वहाँ पे टॉपर्स वो लोग कहलाते हैं, वो हमारे बच्चे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एलन में पढ़ रहे हैं। आप जाइए दुर्गापुर ब्रांच में, हमारे बारे में पता करिए कि जेप्ट कैसा है, आपको बोल देगा हमारे बच्चे का स्टैंडर्ड। अजमल फाउंडेशन एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन है आसाम में, उनका आसाम में बहुत सारा मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, बहुत ही रिनाउंड। बदरुद्दीन अजमल साहब जो है, उनके वहाँ पे भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो मेडिकल इंजीनियरिंग का वहाँ पे कोचिंग दिया जाता है। हर साल हमारे स्कूल से बच्चे वहाँ जा रहे हैं, जाने के बाद वहाँ पे जाके रैंक होल्डर्स अच्छे जगह पे पोजीशन बना के बैठे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, जिन लोगों के दिल पे ऐसा ख्याल है कि इस्लामिक स्कूल में पढ़ के बच्चे का क्या होगा, ये उन लोगों के लिए लाइव एग्जाम्पल है। और एक चीज़ मैं आजकल देख रहा हूँ, देखिए बच्चे तो बहुत हमारे स्कूल पे आते हैं, देखा जाए एंड ऑफ द ईयर 20-30 बच्चे स्कूल छोड़ भी देते हैं। इसका वजह क्या है? अचानक आप लोग का डिसीजन चेंज हो जाता है कि इंग्लिश मीडियम से फिर बंगाली मीडियम में पढ़ाएंगे। देखिए मैं ये पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों को पता है अच्छे से, যারা ভালো করে জানেন আরেকবার জেনে নিন, যেই সব প্যারেন্টসের ইচ্ছা যে আমার বাচ্চা মেডিকেল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই বা পরবর্তীকালে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার বা ডক্টর যেন হয়, তারা যদি ইংলিশ মিডিয়াম থেকে না পড়ে যায়, যদি কেউ এখানটায় কোনো ইঞ্জিনিয়ার বা ডক্টর বসে আছেন বা আপনাদের কোনো রিলেটিভ যদি কেউ বসে থাকে, আপনি তাকে একবার জিজ্ঞাসা করেন ক্লাস 10 বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়ে যাওয়ার পরে কতটি প্রবলেমস আছে। আমি বলছি না যে বেঙ্গলি মিডিয়াম খারাপ, আলহামদুলিল্লাহ বেঙ্গলি মিডিয়ামও ভালো, বাট ইউ উইল গেট এ অ্যাডভান্টেজ। বাচ্চাকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ালে অবশ্যই আপনার বাচ্চা একটু অ্যাডভান্স থাকবে। দ্যাটস ওয়াই ইউ আর पेइंग फीस टू अस, इसी वजह से आप लोग हम लोग को फीस पे कर रहे हैं। तो मैं ये आप लोग को बचाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग के दिल पे ऐसा ख्याल है कि कल को जाके आपका बच्चा अच्छा कुछ बने ज़िंदगी में, अच्छे जगह पे पहुँचे, तो आपको हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। और इस्लामिक स्कूल में आप क्यों पढ़ाइएगा, ये भी आप लोग के दिल में ये सवाल आ रहा होगा। देखिए कम से कम बच्चे का कुछ तालीम मिले या ना मिले, बच्चे बड़े होकर कुछ बने या ना बने, एटलीस्ट अच्छा इंसान तो ज़रूर बनेगा। बचपन से जो बच्चे को इस तरह का तालीम मिलेगा कि अल्लाह पाक क्या है, उनके रास्ते में चलने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आप बताइए बच्चे बड़े होकर गलत काम कैसे कर सकते हैं। इसका वजह यह है कि हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये बच्चे बड़े होके लाइफ में सक्सेस जरूर अचीव करें, साथ में एक अच्छा कंट्रीब्यूटर भी बने, ताकि वो समाज को भी हेल्प कर पाए, खाली अपने परिवार को नहीं। अभी हम लोग बन गए हैं सेल्फिश, वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट अस। हम लोग सोचते हैं अपने बारे में, समाज क्या हो रहा है, सोसाइटी क्या हो रहा है। हम लोगों ने जो प्रोग्राम का नाम लास्ट ईयर से चेंज कर दिया, पहले हम लोग रखते थे कार्निवल, गाला, बहुत सारा नाम था। सर ने बोला, हमारे डायरेक्टर सर ने बोला इसका नाम चेंज करिए इस्लाह मुअश्शरा। इसका मतलब ही यही है, समाज को हम लोग अच्छे रास्ते में कैसे लेके जाएंगे। ये स्टेज के माध्यम से ये बच्चे लोग हमको, आपको, सबको सिखा रहे हैं किस तरह रहना है, किस तरह चलना है। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट। हमारे स्कूल में हम लोग इस साल से क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नया आने वाला सेशन में क्या क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। सबसे पहली वाली बात, MFERT बेंगलोर का एक बहुत बड़ा संस्था है, मिल्लत फाउंडेशन एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो टीम इस्लामिक जितने भी रिनाउंड स्कूल है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो लोग आते हैं, टीचर्स को ट्रेन करते हैं, मैनेजमेंट को ट्रेन करते हैं, ताकि बच्चे को हम लोग अच्छे से पढ़ा पाए। हम लोग उनसे जुड़ के हैं। आलमीन मिशन, उनका एक ट्रेनिंग टीम है, असर्ट बोल के, असर्ट, जो आलमीन में पढ़ता है उनको पूछिएगा। हम लोग उनसे जुड़ के हैं, हम लोग रेगुलर जाते हैं, हम लोग का ट्रेनिंग होता है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमारे स्कूल पे
बेंगलोर से एक टीम आया था जो हम लोग के टीचर्स को, पेरेंट्स को गाइड किया था। इस साल हम लोग का जो सिलसिला रहा, इस साल में हम लोगों ने टीचर्स को कई दफ़ा ट्रेन किए हैं, कई दफ़ा ट्रेनिंग दिलवाया है अच्छी जगह से ट्रेनर्स को बुला के। उसके साथ साथ हम लोगों ने पेरेंट्स मीटिंग किया है, पेरेंट्स वर्कशॉप किया है। मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, जो बच्चे की माँ लोग तो आती है लेकिन फादर लोग उतने नहीं आते हैं। हम लोग जब भी कोई वर्कशॉप करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, फीमेल गार्जियंस दे आर कमिंग, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़, आपको बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आप आइएगा, आप लोग सपना तो बहुत बड़ा देख रहे हैं, लेकिन सपना जो बड़ा देखता है उसको वक्त देना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है आप लोगों के लिए, आपके बच्चे के लिए। अगर आप नहीं आइएगा तो कौन आएगा? तो मैं ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग का स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पॉलिसीज़ है, जो भी सिस्टम है, हम लोग दिन ब दिन उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हर साल हम लोग बेंगलोर जाते हैं। लास्ट ईयर मैं गया था, इस साल 2 दिन के बाद ही मैं और जिमी सर जा रहा हूँ बस ट्रेनिंग लेने के लिए। तो इसके लिए आप निश्चित रहिए, फॉर द क्वालिटी एजुकेशन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव स्टूडेंट्स द गुड आइडियाज, द गुड मॉरल्स, ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। इसके बाद जो लोअर सेक्शंस के बच्चे हैं, जो लोअर सेक्शन के पेरेंट्स लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग इस साल से ऑडियो विजुअल सिस्टम भी कर रहे हैं, ताकि वो लोग क्लास में विजुअलाइज वे में पढ़ाई कर पाए, ताकि वो लोग क्लास में डेली स्कूल आ पाए, अच्छे से पढ़ाई कर पाए। हम लोग ये भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। रहा बात हम लोगों का नया कैंपस का, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स को पता है, हम लोगों ने सूरतपुर पेट्रोल पंप के पीछे एक बहुत बड़ा जगह लिया है। अभी हाल ही में 1 महीना पहले और भी कुछ जगह लिया गया, वहाँ पे घास बहुत सारा लगाया हुआ है, वो कटिंग चल रहा है। इंशाअल्लाह 2026 दिसंबर में वहाँ पे हम लोग कैंपस ओपन कर देंगे। इसी साल दिसंबर में वहाँ पे भी हम लोग का कैंपस ओपन हो जाएगा। फर्स्ट कैंपस आदर्शपुल्ली में भी रहेगा, सेकंड कैंपस सूरतपुर में हो जाएगा। ये आप लोगों का ही मोहब्बत है, आप लोगों का ही सपोर्ट है जो हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं। 150 बच्चे का स्कूल आज पहुंच गया है 900 बच्चे पे। 5 साल का मेहनत, 5 साल का सपोर्ट जो आप लोग हम लोग को दिखाते आ रहे हैं, ट्रस्ट में हम लोग अपने साइड से फुल एफर्ट दे रहे हैं। आप लोग को ये बताना चाहते हैं, ये जो ग्राउंड में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग को भी समझ में आ रहा है ये एक ओपन ग्राउंड है, इसलिए हम लोग जोड़ तोड़ से मेहनत कर रहे हैं ताकि दिसंबर 2026 में हम लोग अपना सेकेंड कैंपस ओपन कर पाए। दोनों ही कैंपस रहेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग दोनों ही कैंपस इसी साल में, एक तो चल ही रहा है और एक शुरू कर देंगे। वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन दोज हु आर प्रेजेंट हियर। देखिए हम लोग का प्रोग्राम थोड़ा लंबा है, बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन वक्त बहुत कम है, लेकिन आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, जो क्वालिटी एजुकेशन आप लोग हम लोग से चाहते हैं, इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली गिव यू। मेरा स्पीच बहुत देर पहले था लेकिन मैं अभी आके आपको इसलिए बोला, ये बातों को प्लीज़ समझिए। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि आपके बच्चे हमसे भी आगे जाएं, ये हम लोग चाहते हैं हमेशा। अगर वो आगे जाएंगे हम लोगों को अच्छा लगेगा। और एक चीज़ आपको बताएं, ये बच्चे को जो हम लोग देखते हैं ना, तो वो लोग को देखते हुए हम लोग अपना सपना पूरा करते ऐसा लगता है। द स्टूडेंट्स दे आर सिटिंग हियर, उनको देखते लगता है अपना बचपन हम लोग खेल रहे हैं उसके साथ। जो ड्रीम्स हम लोग पूरा नहीं कर पाए वो लोग के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो इतना आप लोग प्लीज़ भरोसा रखिए। দেখেন আমি একটু বাংলা ভাষা আমার তো ভালো না বলে বেশি হিন্দিতে বলছি, বাট তাও আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব এতটুকু আমাদের উপরে ভরসা রাখেন। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি স্কুলকে আরও বেশি বেটার করার জন্য। আমাদের ভিশন, আমাদের মিশন প্রচুর বড়। আজকে জিমি স্যার এখানটায় আসতে পারেননি এসআইআর এর কারণে, ওনার নামে নোটিশ চলে এসছে। এটা ফার্স্ট টাইম যে স্যারকে ছেড়ে এই প্রোগ্রাম করছি। যেই লোকটা আমাকে একদম গ্রাউন্ড থেকে উঠে এখানটায় নিয়ে এসেছিল, আজকে ওনাকে প্রচুর মিস করছি। স্যার আমাকে বললো बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रोग्राम सर, आपके ऊपर भरोसा है, टीचर्स के ऊपर भरोसा है और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर भरोसा है। वो लोग कोऑपरेट करेंगे और हमारा प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, हम लोगों ने 1400 चेयर का अरेंजमेंट किया है। ये बात भी बोलना बहुत ज़रूरी है। आज LKG UKG 1, 2, 3, 4 के बच्चे का प्रोग्राम है, हाफ स्कूल के बच्चे का प्रोग्राम है, हाफ कल होगा। 1400 चेयर, कैन यू इमेजिन? सारा चेयर भर गया है। अभी फिर से मुझे बोलना पड़ा एक्स्ट्रा चेयर मंगाने के लिए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, जब हम लोगों ने ये सफ़र शुरू किया था 7 से 10 दिन अपने ऑफिस में हम लोग बैठे थे, एक इंक्वायरी तक हम लोग के पास नहीं आया था जब स्कूल स्टार्ट किया था। ये बोलना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो उठ के यहाँ पे आए हैं ना, हम लोग एकदम ग्राउंड रूट से उठ के यहाँ पे आए, एकदम ज़मीन से उठ के यहाँ पे आए हैं।
हम लोगों को हम लोग का औकात मालूम है कि हम लोग कहाँ से आए हैं। ये हम लोग को प्लीज़, इसलिए आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग अपना पुराना दिन को याद रखे हैं, इसलिए हम लोग को हमेशा हौसला मिलता है। आप लोग जो इस तादाद में आते हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोग को हिम्मत मिलती है कि नहीं हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं। ओनली वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज दोज हु आर प्रेजेंट हियर, ये स्कूल बस स्कूल नहीं है, ये हमारा इमोशंस है, ये हमारा फीलिंग्स है। प्लीज बात को समझिए आप लोग। हम लोग जो भी चीज़ करते हैं दिल से करते हैं, जो भी करना चाहते हैं सबके लिए करना चाहते हैं, बिकॉज वी आर थिंकिंग फॉर everyone. Once again very thankful to all the parents, all the guardians, those who are coming here. हम लोगों ने आप लोगों को दावत दिया इस प्रोग्राम के जब चलेगा ये प्रोग्राम, अगर किसी से कुछ गलती होता है आप लोग प्लीज थोड़ा उसको माफ करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाइएगा। और जो भी कोई यहाँ बैठे हुए हैं एक अच्छी फिक्र के साथ थोड़ा बैठिएगा। स्कूल के प्रोग्राम में आए अच्छी सोच लेके बैठिएगा। अच्छा चीज सोचिएगा तो अच्छा चीज करने का मन करेगा, गलत चीज सोचिएगा तो गलत चीज करने का मन करेगा। तो ये प्लीज हम लोग सबको सोचना है, ये सोचना है कि ये हमारा स्कूल है, प्रिंसिपल का स्कूल नहीं है। जितना दिन आप लोग सोचिएगा ये हमारा स्कूल है, तब तक ये स्कूल टिका रहेगा। जिस दिन सोचिएगा ये स्कूल जिमी सर का है या इजहार सर का है, ये स्कूल बंद हो जाएगा। तो ये स्कूल आपका अपना समझिए। कभी कोई इश्यूज, कभी कोई प्रॉब्लम आते हैं तो हम लोग के पास आइए, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट आउट। वंस अगेन वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, शाम तक हम लोग का प्रोग्राम है, कल भी हम लोग का प्रोग्राम है। आप लोग प्लीज इसी तादाद में कल भी आइए ताकि आदमी को समझ में आए कि जेप्ट क्या है। देखिए जेप्ट का बच्चा तो बहुत हो गया है, लेकिन हम लोगों को अभी अपना पहचान बनाना बाकी है, जो हमेशा हम लोग शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जितने ही बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं आप लोग प्लीज इसी तरह हमेशा हम लोग के ऊपर ट्रस्ट रखिए, होप रखिए। Once again we are very thankful to everyone. Now we are moving to the next program. Thank you so much everyone. Assalamu alaikum. आई है नींद मगर सो नहीं पाए, आई आंखों में आंसू मगर रो नहीं पाए। आपने बहारों की दुनिया तो देखी है मगर, आपने बहारों की दुनिया तो देखी है मगर, सर ने एक दुनिया बना दी है, यही है हमारी पहचान। One thing more, I have missed out one point. देखिए AI बोल के एक टेक्नोलॉजी है, AI that is artificial intelligence। जो समझते मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, जो नहीं समझते उनको ही बता रहा हूँ। हम लोग के स्कूल पे इस एरिया में चांचल बोलिए, हरिश्चंद्रपुर बोलिए, ये सब जगह पे कोई भी स्कूल पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को मशीन बनाने का टेक्निक्स समझाया जाता है। जो बच्चे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में पढ़ेंगे वो अपने घर पे बैठ के कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बना सकते हैं, जो उसके लाइफ में आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे हम लोग साइंस एग्जीबिशन करते हैं हर साल, देखिएगा बहुत सारा चीज़ हम लोग का बच्चा लोग बनाता है, वो आप लोग को दिखाता है। हम लोग इसलिए AI, अभी इन मालदा ओनली वन स्कूल इज देयर, दैट इज तरबिया, जो सुजापुर में है, वो लोग ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किए हैं। उनके थ्रू से हम लोग भी कनेक्ट होकर हम लोग भी नया सेशन में फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि बच्चा कम उम्र में एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा ले पाए और सीख पाए। ये मैं आपको बोलने भूल गया था। AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू। Please clap your hands for our principal sir. What a wonderful speech given by our principal sir. Social media side effect. Drama reflects reality and teaches powerful lesson. The next presentation highlights the side effect of social media through a Hindi drama. Let's watch and learn together. Sulena ma'am, bring your all student up on the stage. साथियों से, तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप, ये पूरी दुनिया मेरे गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा, जवान सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, फेक वर्ल्ड का बादशाह। मुझे टिकटॉक कहते हैं, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी और
सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो देखो मम्मा मम्मा मेरा कल एग्जाम है, आप मुझे थोड़ा पढ़ा दो ना। क्यों बेटा, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें कुछ समझाया नहीं है क्या? हाँ मम्मा समझाया तो था लेकिन मैं भूल गई। बेटा मैं तो थोड़ा बिजी हूँ, जाओ अपने पापा के पास से समझ लो ना। ठीक है मम्मा। पापा पापा मेरा कल एग्जाम है, आप मुझे थोड़ा पढ़ा दो ना, मम्मी तो फोन पे बिजी है। बेटा मैं थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी हूँ, मैं तुम्हें शाम को आके पढ़ा दूंगा। लेकिन पापा प्लीज पढ़ा दो ना, कल मेरा एग्जाम है। अरे बेटा जाओ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं बोला ना मैं थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी हूँ। मम्मी पापा तो दोनों ही बिजी है, चलो मैं थोड़ी देर रील देख लेती हूँ। एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। जन्नतुन जन्नतुन चलो ना हमारे साथ बाहर खेलने। मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। हाँ जन्नतुन चलो ना, बाहर खेलने जाते हैं, हम तुम्हारे फ्रेंड्स है ना। मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे फ्रेंड्स, मेरे पास फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स हैं, जाओ यहाँ से। ठीक है तुम रहो अकेले। जाओ। ديكوريشن ماله حلو، سوي رقصة المارشميلو، ربعنا همو كله كامل كله. क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा तुम्हें? क्या हुआ? मम्मा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मम्मा। क्या हुआ बेटा? मम्मा मुझे कुछ दिखाई। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर साहब को बुलाओ ना। हेलो हेलो डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आ जाइए, मेरी बेटी को क्या हो गया है? डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आ जाइए। होंगे तुम्हारे फेसबुक में 5000 फ्रेंड, लेकिन तुम्हारा एक भी फ्रेंड बचा नहीं सकता मुझसे। वी आर शक्तिमान। इसको उठाकर ऊपर बैठाइए। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरी बेटी को क्या हो गई है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरी बेटी को? देखिए आपकी लापरवाही और ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बेटी की आंखों की रोशनी कम हो गया है। आपको चाहिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और सोशल मीडिया से दूर रखिए। क्या हो गया है आजकल के पेरेंट्स को, बस अपने बच्चों के हाथों में फ़ोन थमाकर सब कुछ भूल जाते हैं। अपने बच्चों को वक्त दीजिए और उनका ख्याल रखिए। आज मेरी वजह से मेरी ये बेटी की ये हालत हुई है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है कि बच्चों को सिर्फ टॉयज या मोबाइल नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें बस अपने माँ बाप का प्यार चाहिए होता है और वक्त चाहिए होता है बात करने के लिए। आज से मैं वादा करती हूँ कि मेरी बेटी के हाथ में फ़ोन कम और मेरा हाथ ज़्यादा होगा। आज से मैं उसके साथ बैठूंगी, उसके बातें सुनूंगी और उसके सपनों को समझूंगी। आज से मेरी बेटी सिर्फ स्क्रीन की रोशनी नहीं, मेरी रोशनी में भी बनेगी। मैं मानता हूँ घर का बोझ उठाते उठाते शायद मैं अपना फर्ज भूल गया। मैं सोचता रहा पैसा ही कमाना सब कुछ है, लेकिन आज समझा बच्चों
के लिए वक्त कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। आज से मैं सिर्फ प्रोवाइडर नहीं, एक गाइडर, एक दोस्त भी बनूंगा। मेरी बेटी के साथ बैठकर बात करूंगा, उसके सपने समझूंगा और फ़ोन से ज़्यादा उसके साथ वक्त गुजारूंगा। Thank you. What a wonderful drama.